Good morning, all of you. So before we start, Good morning. you have seen I am in helmet, and you may be wondering why am I in the helmet and this uniform, right? So I will brief you that I was handling Kansai Paints. It's a Japanese company, and we have been catering to Maruti. All the paints, all the cars which you see on the road are being painted by me and my team. So I was a part of Kansai Paint Bawal plant, which is close to Manesar and which is close to Gurgaon, where Maruti has manufacturing unit. So our technical director, Mr. Takashi Tomoe, he was a technical director from Japan. Whenever he came to our plant, right, what first thing he does, he take the uniform, he take the helmet, changes, wear it, and sit with the ordinary people. So the biggest learning from him that whatever you are, whatever position you have been holding in the company, but you have to be down to earth. What he used to teach us that my job description and your job description, a worker job description differs, and my salary differs. Nothing else. We all are employees. हृदय जी, सुमित जैन दिस साइड. आप कहीं पे बैठे हैं जहाँ पे पंखा बहुत तेज चल रहा है या बहुत तेज आवाज आ रही है? Yes, बंद कर दिया. So he used to tell us, Mr. Takashi, that my salary and your salary may differ, and my job description, your job description may differ, but we are all employees of the company. So this is a lesson which I have learned, and all the students or who all are attending now have to be very strong belief that you need to be grounded. If ego you carry, maybe you may be a CEO of the company, but you may not sustain that position, right? So this is the lesson which I have learned from him. Now we will start with supply chain simplified. So next slide. Yes, after this slide, one thing. One second. Before I start, I will take you to the era of 1990. Since I have a paint manufacturing experience, those days, in prior to 1990, that is prior to liberalization of our economy, we had departments. Today we call it functions. Those days we had departments. So we have accounts, finance, audit, sales, admin, payroll, purchase, packing material purchase, transport department, R&D. These were the departments which we had in the past prior to 1990. Now we call it functions, we call it supply chain functions, we call human relations function, that is HR, right? Instead of admin, payroll and all that. So one fine day, the finance manager went to the managing director of the company. He told him, sir, today is 25th and I do not have funds to pay salary to the people. So this one I won't be able to pay salary. The MD screams at him and he tells him that last month we had a record production. How can you say that we do not have sales and we do not have money? So he says, sir, my bank account is empty. You can see it, and I do not have funds. So he immediately called the sales manager. Sales manager says that, sir, मेरा अभी season था, दशहरा के पहले 15 दिन के पहले मेरा पेंट सब गोडाउन में आ जाना चाहिए था, वेयर हाउस में आ जाना चाहिए था, 15 दिन डिले हो गया, तो कंपटीशन ने उसका एडवांटेज लिया and it severely affected my sales. The MD calls the purchase manager. Purchase manager says, sir,
production manager. Production manager said, sir, I tried my best. We have a record level production this month, 100 tons, which is a history. But some raw material I did not get, and due to that, my production was delayed. Then the MD called the raw material manager. He says one critical raw material was not available, and I could not get it. So we could not, process the entire manufacturing, and we were delayed. So like that, everybody passed on the monkey to the other department, and the MD got wild at him, those people, and he told them that you go to a war room, a conference room, and decide what you will be doing, and I don't want to repeat this, or I will not be paying salary to you. So we all went to the war room, and I saw one small picture, one small video, which will see on the screen, right? So video. Team of 12 people. This is how they created the world record. Here we see a team of 12, a fraction of second. If anybody does not perform, they would not have entered Guinness Book of World Records. So what we learned from this video is a chain. With 12 managers, we cannot work in silos. We cannot work in compartment. We need to synchronize all the activities of manufacturing till the end where the customer receives the material. So this chain, we call it as. Excuse me, Yogesh. Yogesh, we actually could not see the video because if you were showing a video, we could not see it. I think you might have not shared the screen if that's the case. No, I could see the video playing here. Oh, but we. Anybody has this problem? No, I don't think we saw the video. I think you were supposed to share the screen, and that did not happen. No. I think we did see. We all seen it. We saw it. Okay. I saw it. We could see. Okay. I'm sorry for that. Then I think there's something wrong with my screen. No problem. My apologies. Yeah. No problem. Okay. Thank you. So, do we continue? Yogesh, please continue. Thank you so much. So, this is how, from that particular video, we could realize the importance of chain. So, this is how supply chain came into existence. Now, we'll see what is supply chain. Next slide, we'll see what is supply chain. How do we define? So, supply chain is a management of flow of products and services, start with the manufacturer to the end customer. This is very important, end customer. I think I will give an example and show you how it works, right? The definition will show by pictures. So next is, see, assuming we have a
manufacturing unit. And the company has ordered for raw material and packing material of paint. Say, in paint, there are 15 to 20 types of chemicals and packing materials, read dabba, right? So assume those packing material and raw material has come to plant. Now, based on the BOM, that is bill of material, the production department will take the material, raw material from stores, and they will start manufacturing. After the manufacturing of paint is over, it is filled in a carton or a dabba, right? The stock will go to the distributor. It may go to the retailer directly. It may go to warehouses. The company owns around 150 warehouses. Asian Paint owns 150 warehouses. From manufacturing plant, they will send it to warehouses, and from warehouses, they will send it to retailers. You have seen all hardware stores on the roadside, right? We supply to them, and from there, it goes to the end customer directly. So this entire chain, right from receipt of material to the end customer receiving the final product, all the information exchange between this, right? It is called a supply chain. Now, Asian Paints is a master in supply chain activities, and they created some value chain also. So after the paint is being delivered at your home, what they do, their expert team will come to your home and they will advise you how to paint it. Or they will take the contract also. They will paint the house, your home, decor the home, right? And they will charge. So right from receipt of raw material to the end customer receiving the final product, and we create value chain also, right? So this is in short what is the supply chain management. Information flows from plant to various functions to the customers to the retailers, right? Retailers in turn they give you information, maybe payment cycle, maybe some product complaint. So all these information flow, finance flow, right? All these interaction is called a supply chain, right? Very clear? So do we go ahead? Go ahead, Mr. Yogesh. And anybody has any kind of queries, okay, the chat box is always open. You can please make sure send all your queries on the chat box, and I'll make sure Yogesh will answer all those questions. Thank you so much. Yogesh, please continue. We'll have a discussion at the end of the session. So majority of your queries will be resolved by going through this process, and at the end we'll discuss your whatever problems or queries we have, right? So supply chain management is designing, planning, execution, control, and most important is monitoring. Say you may implement something, but if you do not monitor, it goes to waste. I have seen many cases we waste crores of rupees, right? Then do not monitor, do not control, then the idea becomes a flop. So supply chain management is designing, planning, execution, control, and monitoring. We'll go to the next slide. Now, we have seen job creation slowly after the automation. The job creation at manufacture is hardly 10%. And 90% of the jobs are created by supply chain only. I will give an example. In earlier days, assuming we want we are manufacturing 100 tons of paint. Then for that, 15-20 types of chemicals, we used to order to the labor. The laborers will find those chemicals and give it to the production department, and production department will start manufacturing. Now, last 10 to 15 years, we have implemented ASRS system. That is automated storage and retrieval system. It was first it was given by Singaporean company. Now Godrej has started giving this particular facility, wherein what they do, all the raw materials and packing materials are stacked a scientific way.
and every material has a barcode. Right? The moment you generate bomb is bill of material. So the number of chemicals and quantity of chemicals which are required to manufacture say 100 tons of paint. So it will pop up all the chemicals, right? The trolley will go to the respective area, pick up all the material and give it to the production. So here no labor is involved. Even after the paint is manufactured, right? Assuming we have a big warehouse at plant and the allocation happens automatic, and assuming I have to send Raipur 20 tons of stock, right? What the system will do, it will segregate all the stocks, types of stock, the 4 liter, 10 liter, white, black, blue, whatever, right? Keep it aside, and that stock will be loaded to a vehicle by some laborers. So here you have seen that instead of 50-60 labor, we need hardly 5 to 10 labor to implement the entire area. So this is how in manufacturing all the companies have started automation, and only 10% scope is in manufacturing, rest 90% is in supply chain, right? So we'll go to a next slide. To provide the best quality product to the customers at a reasonable price. Here, these are the goals also and challenges also for a supply chain company. Whoever the head of supply chain, his entire team, they have to give the best product at a reasonable price. So reasonable price, what we do. For example, I will go to the 1990 era again. See, those days now, how the selling price was determined. Assuming I have one mobile, this mobile, I will take input, that is raw material, the packaging, right? The labor cost, plus my GST, plus my selling and administration cost, marketing cost, plus my profit was the selling price on those days. Today, the market has become very competitive. So what MI will do, Xiaomi will do, assuming Samsung is selling at 15,000 rupees, this particular mobile, so his price will be 14,000. And he has to rework the entire, backtrack all the expenses and ensure that by selling this product at 14,000, he earns also, right? And he gives the best product also. So this is the challenge in today's world. Earlier, post 1990 area, it was very simple. Now we are into a global competitive area and competitive world, and we have to give the best product at a reasonable price. Next challenge or goal is maximize profit, minimize cost, and eliminate all wastages. We'll discuss in detail what are the wastages, right? And how to eliminate those wastages, how to maximize the profit, how to minimize the cost, correct? And one more challenge is to provide the right product to the right customer at the right time. This is the biggest success of a company or biggest failure of a company. If you fail in this, you will be nowhere, and if you succeed in this, you will be an Asian Paint company. Asian Paint today is around 1 rupee share is traded in the market at 3,500 rupees. And the turnover is 20,000 crore. And if you take all the other competitors, if you take the total of all the competitor sales, they will not make to Asian Paint. And the biggest success of Asian Paint is automation and supply chain. Excellent system they have. Now, to provide the right product to the right customer at the right time. I will give you one live example. I am handling Whirlpool at Bhiwandi. We have around 1,75,000 square feet of warehouse, wherein we store washing machine, then fridge, air conditioner, everything. One fine day, I received around
200 pieces of refrigerator, and all were around 165 to 200 liters. I checked with the company. I told them, sir, my Mumbai market, a poor man also now, he will not go for a small fridge. He will require at least 2 doors. Correct. So I will not be able to sell these products in the market. The market will not accept these products. So what here we don't realize, this particular product now is better for any interior. You see Akola, you can say, or say not even Nasik, Akola, or somewhere Madurai or Trichy, where the population is thin, population is somewhat poor. There you can sell this product, but this product will not be sold here. Here I need at least 300 liters of refrigerator to start with, and it will go to 1.5 lakh or 2 lakh, right? So if you do not give the right product at the right price or right time, right, you face the challenges in supply chain. So the biggest goal or challenge, again I will repeat, to provide the right product to the right customer at the right time. We have seen the earlier example of paint industry. Before Dussehra, right? The paint could not be received at the warehouses, and we lost the sale, because generally what in Mumbai or anywhere what we do now, before Dussehra we start painting home. So before Diwali our home is very chakachak. करेक्ट. तो अपना घर एकदम मस्त हो जाता है दिवाली के टाइम. तो हम क्या प्लान करते हैं कि भाई दशहरा या नवरात्रि के पहले चालू कर देते, तो दशहरा तक मेरा फर्नीचर ये वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, राइट. तो राइट टाइम ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the goals and challenges. So we'll go to the next slide. See, I am handling Reliance Fresh. I am handling Reliance Fresh at Bhiwandi. We have around 90,000 square feet of warehouse. No, the process start this way. Reliance has bargained with all the farmers. They fix up the rate, and whatever produce during the year, they purchase it. They fix the quality, quantity, and everything, and they purchase it. They purchase from Sangli, Satara, Pune, Nashik, all the interior parts of Maharashtra. Various produces, fruits and vegetables, comes to my warehouse. Now my role starts here. What I will do when I receive those products by trucks, I have to unload them, sort them, then grade them, stack them, and allocate them. So what do we do? When we receive the material, I will sort to 3 categories. Say, when you receive a truck, when you receive a lorry, and it contains various fruits and vegetables, maybe there are in-transit damages. Correct? So A grade quality, we send it to 83 Reliance Fresh stores. 83 in Mumbai and Thane. Mumbai and Thane district, they have 83 stores. And to those stores, we supply this product. So A grade supply, A grade quality product, we segregate. We segregate B grade also. And we segregate the dump. Suppose एक कुछ तरबूज आया अपने पास, या कोई एप्पल आया, उसमें कुछ होल हो गया, खराब हो गया, so we cannot supply to anyone. So we have to dump. So we discard this dump material and send fresh material to the stores. So here we sort them, grade them, and SAP allocates automatically those 83 stores, right? So my operation starts in the morning. In the morning, we receive all the stock till evening, and it is distributed to the stores. We'll see some of the photograph where we will get it very clear. Can I ask a question? Go ahead. Sumit, even I wanted to ask him a question. Sumit, go ahead. Please ask a question. Yes. Mr. Yogesh,
when Yes. we are talking about different industries that you've been into, whether it is paint industry or white goods industry, the Right. example that right now you are sharing about Reliance Fresh, Right. there is a pertinent issue of shelf life of the product. True. Very true. Very true. Very So when yeah. you talk about the shelf life of the product, since these are perishable, how Yes. do you make the purchase decisions with respect to forecasting and with respect to the quantity that you need to buy? Quality, I Right. can understand you sort them as per the quality standards, and Correct. then supplying them in the right time and collection of sales. Yes. Yes. So when collection of sales happen, there might Yeah. be a lot of wastage that Right. happens. So how do Very you envisage the entire value chain when Yes. perishable items are sold to the last customer fresh as possible? Yes. Money is also collected, and there is least wastage. Yes. I will, very good question. Very interesting also. See, these fruits and vegetable products, we cannot afford a 90,000 square feet of warehouse, which can be air conditioned, or the item cannot be refrigerated. Only dairy products, we have a small place, around 500 square feet of place, where we store these dairy products and we dispatch to all the stores. These fruits and vegetable, we have been operating 365 days, 24 hours. 24/7, 365 days. So here the idea is, see, whatever stock I receive, right, I ensure that entire stock is sent to my 383 or 84 locations, Reliance Fresh Store. And this allocation is done by Reliance supply chain team. It is not my job. What I do, that whatever they have allocated now, I have to stack accordingly. Right. So leafy vegetable now I receive after 11 p.m. 11 night. 11 p.m. after 11 p.m. I receive all the leafy vegetables. जो होता है ना, तरकारी होता है, बाद में आपका धनिया होता है, कोरिएंडर, ये सब है ना, रात को 11 बजे के बाद आता है. और what we ensure कि जितना भी स्टॉक हमने स्टोर को दे दिया ना, और जो भी लीफी वेजिटेबल्स आया are distributed to all the stores. So in the morning, ये बात तो मैं समझ गया कि आप खाली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप परचेज डिसीजन कैसे लेते हो कि इतना ही तरबूज लेंगे या इतना ही सब्जी लेंगे. ये परचेज डिसीजन है ना, हाँ, परचेज डिसीजन है वो रिलायंस के मैनेजर लेते हैं. वो मेरा उसमें कोई रोल नहीं. मेरा रोल स्टार्ट होता है ना, जैसे मेरा कोई ट्रक मेरा वेयरहाउस पे आया, करेक्ट, तो मेरा आपका टर्न अराउंड टाइम का टाइम, आपका वैल्यू चेन है टर्न अराउंड टाइम कि कितनी जल्दी 11 बजे आया रात को ट्रक, तो सुबह कितनी जल्दी आप 6 बजे से पहले उसको निकाल सकते हैं. तो सुबह मेरा है ना डिस्पैच स्टार्ट होता है 4 बजे से. 4 बजे मेरा लोडिंग स्टार्ट हो जाता है. तो 4 से 6 के बीच में मेरा लोडिंग सब हो जाता है, और 4-5 बजे से सब ट्रक निकल जाता है. समझो एकदम लंबे से लंबा लोकेशन मेरा भिवंडी से चर्चगेट है, राइट. तो मैं पहले चर्चगेट का गाड़ी भरूंगा, राइट, मरीन लाइन्स का, चर्चगेट का, चन्नी रोड का, वो पहले गाड़ी भरूंगा. और उसके बाद में जो समझो थाना है, थाना की गाड़ी में लास्ट में भरूंगा. थाना में भी मेरे स्टोर्स है, और भिवंडी और थाना के बीच में डिस्टेंस हार्डली 15-20 किलोमीटर, राइट. तो वो मैं 6 बजे भरूंगा. और बाकी सब गाड़ी है ना, जैसा डिस्टेंस है ना, उसको मैं प्रायोरिटी देके सब माल भरते जाऊंगा. और वो गाड़ी है ना, सब 6 बजे के पहले मेरा रिलायंस का जो स्टोर है वहां पे पहुंच जाती है, राइट. और वहां से वो अनलोड करके बाद में वो जो मेरा रिलायंस फ्रेश का जो स्टोर है ना, दैट इज एयर कंडीशन. तो किटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया. अब मुझे बताइए, अगर रिवर्स सेल आता है, जैसे कि आपका 82 स्टेशन में से 2 दिन के बाद कुछ माल वापस आ गया जो बिका ही नहीं, उसका कैसे वापस जाता है? नहीं सर, इसमें रिलायंस नहीं रखा है, क्योंकि रिवर्स लॉजिस्टिक्स में ना आपका खर्चा बहुत है, राइट. और ये पेरिशेबल आइटम है जो आके मेरे को कुछ वैल्यू एडिशन नहीं देते, मैं उसको डिस्पोज भी कैसे दूं. तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है ना, वो रिलायंस फ्रेश का जो सोर्स है ना, वही वो लिक्विडेट कर. जो भी बचा कुचा हुआ है ना, समझो आपका धनिया है, वो 1-2 घंटे 3-4 घंटे के बाद वो सेल हो जाता है, वो खाने के लायक नहीं रहता है, तो वो इन लोग डिस्पोज कर. हाँ, तो वेस्टेज होता है. मेरा रोल क्या है कि मेरे को श्रिंकेज है ना 0.5% मुझे श्रिंकेज अलाउ है. मेरा जितना स्टॉक आया और मैंने जितना स्टॉक डिस्पैच किया, राइट, 100 टन मेरा
डेली है ना 1 लाख किलो का रिसीट है और 1 लाख किलो का मेरा डिस्पैच। समझ गया। तो आपका किटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। मेरा हाँ। क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। राइट, तो इसमें मेरा रोल है ना वो क्या है कि मेरे को मटेरियल रिसीव करना है, उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना है, क्वालिटी अच्छा करना है, जो भी क्वालिटी होएगा। अभी एक पोटैटो का साइज है ना, हमारा स्टैंडर्ड साइज है, वो साइज के नीचे मैं पोटैटो दे नहीं सकता हूँ स्टोर को। राइट, तो मेरा एक पूरा एक प्रोसेस है। पोटैटो जैसे आएगा ना तो मेरा सब एक स्टील का पूरा एक लंबा चेन है और उसमें छोटे छोटे होल्स है। वो होल्स के अंदर से पोटैटो गया ना, वो मैं नहीं बेचता, वो मैं वेंडर को सेल कर देता हूँ। जो भैया लोग आते हैं ना जो भी खरीदने को, उनको मैं सेल कर देता हूँ। मतलब हमारा एक क्वालिटी का एक पैरामीटर है, वो क्वालिटी का पैरामीटर से ही मेरा माल मेरा स्टोर्स में जाएगा। करेक्ट। योगेश योगेश मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हो, तो यू हैव एनी एक्सपर्ट पर्सन और आपका ही जो स्टाफ है, लोकल स्टाफ, वही हैंडल करते हैं? हाँ, मेरा जो सुपरवाइजर है ना उसको रिलायंस वाला ट्रेनिंग देता है। राइट, और रिलायंस के कुछ मैनेजर भी, 1-2 मैनेजर तो वो ऐसा राउंड अप पे रहते हैं, वो क्वालिटी चेक करते रहते हैं, वो रैंडम करते हैं। लेकिन मेरा टीम पूरा एक्सपर्ट है जो ये काम इजीली कर रहा है। हम लोग सब फ्रूट भी कट करके बॉक्स में पैक करते हैं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारी लेडीज है। करेक्ट। बाद में वेजिटेबल भी कट करके पैक करते हैं, 250 ग्राम, आधा किलो ऐसा करके रेडीमेड भी पैक बेचते हैं। वहां से हम लोग ई कॉमर्स भी करते हैं, मतलब जिसने ऑर्डर दिया ई कॉमर्स पे उसको भी डिस्पैच करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज कितना अलाउड है? नहीं, वेस्टेज अलाउड मतलब अभी इन ट्रांजिट मेरा डैमेज हो गया ना, वो फार्मर से हम लोग ट्रक लेके आए, राइट, और उसमें सपोज एप्पल है सारा और कुछ इन ट्रांजिट डैमेज हो गई, तो वो डैमेज स्टॉक को है ना मैं डैमेज कैटेगरी में डाल के मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर, मैं किसको वो स्टॉक को मैं फेंक दूंगा। मेरा लोकल जो बीएमसी होता है ना उसका गाड़ी डेली आता है, 1 लाख किलो में मेरा 700-800 किलो जैसा डंप निकलता है। राइट, एक टन से ज्यादा नहीं निकलता है, तो इतना मेरा डंप निकलता है, वो मैं डंप अलग रख के उसको बैग में भर के बीएमसी को हैंड ओवर करता हूं और बाकी का स्टॉक हम लोग बेच देते हैं। थैंक्स योगेश, थैंक्स। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी मैनेज। वी विल सी सम ऑफ द फोटोग्राफ तो क्लैरिटी आएगा। ये ही इज टेकिंग इनवर्ड, ही इज इन द वेयरहाउस। जैसे मटेरियल आया वो चालान देगा, बिल देगा, उसका टोटल क्वांटिटी चेक होगा, राइट, और एसएपी में वो अपलोड करेगा स्टॉक। जैसे एसएपी में स्टॉक अपलोड किया ना, वो ऑटोमेटिक मेरा 83 स्टोर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग का फॉर्मूला है जो पास हिस्ट्री पे, सपोज सबसे बड़ा स्टोर है ना मेरा सांताक्रूज वेस्ट में है, जो सबसे ज्यादा माल है। तो अगर मेरा समझो 100 किलो बटाटा आया तो 15 किलो बटाटा तो खाली वो सांताक्रूज का स्टोर को जाए क्योंकि उसका सेल हाईएस्ट है, राइट। बाकी 85 केजी है ना वो सब 83 स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसा मतलब वो फॉर्मूला किया है सप्लाई चेन का, जो मेरा जैसे ही स्टॉक अपडेट होगा ना, समझो कांदा आया, बटाटा आया, हाँ, तो उसका अलोकेशन 83 स्टोर्स को हो जाएगा। वो क्या करेगा, अलोकेशन का लिस्ट मेरा सब जो पिकर्स होता है, मेरा एक कैटेगरी, एक लेबर होता है जो वर्कर होता है, उसके ऊपर एक पिकर होता है जो थोड़ा इंग्लिश लिखा पढ़ी जानता है, वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके वो जो पिक लिस्ट आएगा उसको वो लेगा, वो स्टोर वाइज वो देख देख के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा। तो मैंने इनवर्ड ले लिया और एसएपी में अलोकेशन हो गया। ये ऐसा उसका स्क्रीन है। अभी नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे। हाँ, ये सब लेडीज है जो कांदा है, बटाटा है, उसको हाफ केजी और 1 केजी में हम लोग पैक करते हैं। उसका क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं कि कोई फालतू क्वालिटी आया, उसके लिए हमने लेडीज लोग रखा है, और कटिंग के लिए, वेजिटेबल कटिंग के लिए भी सब लेडीज लोग रखा है। हाँ, नाउ आपने ऊपर स्क्रीन में देखा है ब्लू कलर का वो है, राइट, ये सब स्टोर्स का नाम है, वो स्टोर्स का कोड होगा, वो स्टोर्स का नाम होगा। तो जैसे स्टॉक आया ना, मैं स्टॉक इन लूंगा एसएपी में, उसका अलोकेशन होगा, अलोकेशन करके हम लोग ये इसमें है ना, ये पूरा क्रेट देखा आपने, क्रेट के अंदर भर के हम लोग पूरा दिन लगाते जाते। तो क्या है, जितना भी आएगा ना वो स्टॉक कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा, वो स्टैक इसमें होते रहेगा, और ये स्टॉक अलोकेट भी हो गया और स्टोर के लिए रेडी भी हो गया। तो ऐसा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक यही पूरा प्रोसेस चलते रहेगा।
11:30 के बाद जो लीफी वेजिटेबल आएगा उसका अलोकेशन होगा, और उसके बाद में हम लोग सीधा स्टोर्स में लोडिंग चालू कर देंगे सुबह 4 बजे। ये है, नेक्स्ट है, हाँ ये अभी लोडिंग चालू है, राइट। ये ट्रक के अंदर पूरा जितना भी क्रेट्स है उसमें उसने स्टोर्स वाइज सब स्टेकिंग करके माल भर दिया है। अब ये 4 बजे ये गाड़ी निकलने को चालू हो जाए। नेक्स्ट, राइट। तो अभी हमने ये पूरा एक एग्जांपल देखा, प्रोसेस देखा, हाउ डू वी मैनेज रिलायंस फ्रेश। इसमें चैलेंज ये है कि मेरा जितना भी स्टॉक है, कांदा बटेटा का सेल्फ लाइफ है ना 4 दिन का है, तो हम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि उसको 4 दिन तक हम लोग रखें। लेकिन जो भी स्टॉक पेरिसेबल है, वैसा कोई भी स्टॉक मेरा वेयरहाउस में पेरिस आज तक हुआ नहीं। व्हाट वी एंश्योर, मेरा सुपरवाइजर इतना इंटेलिजेंट है कि सुबह 4 बजे अगर कुछ स्टॉक बचा एंड ही नोस कि ये स्टॉक अभी तक अलोकेशन नहीं हुआ है, तो फट से एसएपी में जाके जो बड़ा स्टोर है ना उसको अलोकेट कर देगी और वो माल तुरंत निकाल देगी। क्योंकि मेरा माल अगर रिलायंस फ्रेश का स्टोर्स में गया तो ही बिकेगा, यहाँ से मैं बेच नहीं सकता। करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में है ना देयर आर चैलेंजेस। अभी हमने 5, 17, 18, 15, 16 महीने में लॉकडाउन का बहुत बात सुना। वी हेट दिस वर्ड लॉकडाउन, राइट। ऐसे ही एक वर्ड है डाउन टाइम। डाउन टाइम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में होता है, सी ये पूरा प्रोसेस में है ना देयर आर वेरियस, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको रिलायंस फ्रेश का, उसमें क्या क्या मेरे पास चैलेंजेस है और क्या क्या मेरे पास डिफेक्ट्स है, जिसको हम डाउन टाइम बोलते हैं। इससे कोई कंपनी भी बंद भी हो सकता है, राइट। कंपनी बड़ा लॉस में भी हो सकता है, बट वी हैव टू फैक्टर दिस एंड वी हैव टू एलिमिनेट दिस डिफेक्ट्स। सो फर्स्ट इज डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अज्यूम कि मैंने एक मोबाइल लिया और मोबाइल फंक्शन ही नहीं कर, राइट, उसका स्क्रीन खराब हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ, राइट। विच अभी हम लोग आगे 6 सिग्मा में देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसा होता है और हम लोग कैसे वो लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो पहला डिफेक्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो प्रोडक्ट ही काम नहीं करता है। घर पे आपने टीवी लिया और टीवी ऑन नहीं हुआ, रिमोट नहीं चला, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सेकेंड हो गया आपका ओवर प्रोडक्शन। मेनी टाइम्स मैंने वर्लपूल में ऐसा देखा है कि मेरे पास कभी है ना ओवन आया, ओवन का एक 11,000 रुपए का ओवन है, उसका नया वर्जन आ गया 3 महीने, और मेरा पुराना जो ओवन है ना वो बिका नहीं है। समझो 10 पीस मेरे पास आया था, 5 बिक गया, वो 5 अभी भी पेंडिंग है, और सडनली मेरे पास नया स्टॉक आ गया जो एडिशनल फीचर के साथ है। तो कस्टमर क्या करेगा, ऑलवेज है ना वो एडिशनल फीचर वाला अगर 500 रुपया ज्यादा भी है ना, तो विल बाय दैट प्रोडक्ट, ही विल नॉट बाय दी ओल्ड प्रोडक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक में बहुत कॉमन है, राइट। आपका एयर कंडीशनर आपने लिया, 5 स्टार आया, पहले 3 स्टार था, अभी नया मॉडल 5 स्टार आया, तो पब्लिक 5 स्टार ही लेगा, 3 स्टार वाला कोई नहीं। तो ये है ना ओवर प्रोडक्शन है ना, दैट वी हैव टू कंट्रोल। So what we write to the company, or what the company will send a mail to me, that what are the old stock pending for a particular oven. So I will send them, these are my stock. So what we try to do now, we liquidate before the new product comes in. If we do not liquidate ना, तो ये मेरा ओवर प्रोडक्शन हो गया और वो लाइफ टाइम उधर ही पड़ा है। I have n number of items जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से पड़ा है, वो बिकता है। Correct. So this is one wastage, one defect or deadly waste is overproduction. Second is waiting. अभी अपने को पिज्जा भी अपने घर पे 30 मिनट में चाहिए, करेक्ट। सो वी डू नॉट वांट टू वेट। अभी अमेज़न भी आपको जो मोबाइल देता है ना, वो विद इन सेम डे डिलीवरी देता है, करेक्ट। तो ये वी ट्राई टू एंश्योर that the product which you have ordered is received by you within a minimum time lag. So
वेटिंग इसमें ज्यादा होना नहीं चाहिए, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द डेडली वेस्ट or deadly defect of waiting. Next is non-utilized talent. What happens sometimes that I have manufactured paint, right? And my packing material department is not ready, or they have some problem. They have not been able to fill the paint. So my talent is wasted. So every hour wasted, every man hour wasted is my money waste, because I am paying to the labor, I am paying to the managers, right? And if they are idling, then I have invested money, right? I have wasted my money, and it has not been fully utilized. A production cycle of particular paint is say 3 hours, right? So within 3 hours now, I have to ensure that the production is out and it is dispatched also. If it is not, if it is stuck somewhere, maybe in manufacturing, maybe in packing, then I am not utilizing the talent. Next is transportation. Am I on the track? Yeah, go ahead, Mr. Go ahead. Yogesh. Yeah, good. Yes. Yeah. So next is transportation. Again, I will give an example of paint industry. Ankleshwar, we have a manufacturing unit, right? And what we try to ensure that all the Gujarat depots, we have Surat, we have Baroda, we have Ahmedabad, we have Rajkot, right? All these depots now should be, we try to ensure that should be catered by the Ankleshwar plant, because it is the nearest plant. We have a plant at Hosur also. So if I am manufacturing some paint at Hosur and I am dispatching to Ahmedabad depot or Baroda depot, the transportation is very high. What we study is KMKG. KMKG is per kg, what is my kilometer traveled by a product. The minimum travel, right? It is easier to cater to a customer, cater to the customer at the right time, within a shortest time, and I am saving transportation cost also. Correct? So it's very rare that Hosur or say some Himachal Pradesh plant has manufactured and they are sending to Ankleshwar or Baroda or say Surat. It's a very rare. Some particular item is not available in this plant, raw material is not available. Then only it will happen. Otherwise, we ensure that transportation is minimized, KMKG is minimized, and this is what all the companies will try to do. Next is inventory. This is the most important aspect, because inventory is always a liquid cash. Liquid cash lying at, if you have 100 depots, liquid cash lying at 100 depots. I always giving, when I was with Kansai Nerolac Paint, I was All India Commercial Manager, and I was trying to give the presentation always कि मेरा मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव है ना, जितना फ्रेश है ना इतना बिके. तो इन्वेंटरी भी इतना जितना फ्रेश होगा, जो मार्केट में चाहिए, जो मार्केट में डिमांड है, वही इन्वेंटरी अपने पास रहेगा और फ्रेश इन्वेंटरी रहेगा, then only you can win. Otherwise, your inventory will be lying idle, your working capital is blocked, you may be paying a huge interest on working capital, you have taken loan from bank, right? And your entire money is stuck in this inventory. So we have to ensure that inventory is minimized. Say, one example I will give you. Ankleshwar and Baroda. The distance is hardly maybe say less than 50-60 kilometers. 80 kilometers. So what we'll try to do now, that Baroda or say Surat, they will have the inventory of only 7 days.
in the branch, right, in the warehouse, I will have only 7 days inventory. And if you see Rajkot, it is somewhat far off from Ankleshwar plant. They will keep the inventory of 10 days or 12 days or 15 days maximum, right? So what we try to ensure that minimum inventory is lying at the depots, because inventory is my working capital. Working capital is my liquid cash, and liquid cash is my interest borrowing from the banks or financial institution, wherein I am minimizing my profit. Correct. So minimum inventory, right inventory is the biggest challenge. Next is motion. Yogesh, is it possible? Can you explain that concept of km, kg, kilometer to kilogram concept? एक बार फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देखिए. आपने होसूर का दिया था, होसूर बैंगलोर में जो है, उसके बारे में बट एक बार फिर से समझा दो ना. km kg is what we do ना. एक मेरा 1 किलो का बकेट, या मेरा समझो मिनिमम बकेट है 4 किलो, राइट. जो फास्ट सेलिंग होता है मेरा 4 किलो का एक बकेट है, पेंट है, वो है ना कितना ट्रैवल करना चाहिए, राइट. व्हाट आई ट्राई टू एंश्योर कि उसको मिनिमम ट्रैवल करना चाहिए टू रीच माय वेयरहाउस. अंकलेश्वर में मेरा प्लांट है, बड़ौदा में मेरा डेपो है, सेल्स डेपो है. तो अंकलेश्वर से बड़ौदा वो 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो मेरा km kg वो 60 किलोमीटर होता. अभी यही प्रोडक्ट मैं अगर होसूर से ऑर्डर करें, राइट, तो वो किलोमीटर हो जाएगा 1000-1200 किलोमीटर. तो वो प्रोडक्ट मेरा 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया, करेक्ट. तो वो 4 लीटर का बकेट है जो मैंने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, और वही 4 लीटर का बकेट है जो मेरा 1000 से 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया. तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें बढ़ गया, करेक्ट. तो जितना मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ऐसा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. तो मेरा सप्लाई चेन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट, करेक्ट. तो मेरा प्रोडक्शन प्लानिंग ऐसा होगा ना कि when we receive the sales budget in the month of February, we receive the sales budget from all the depots. Pan India if you say 150 depots, तो 150 डेपोट का सेल्स मैनेजर है ना, मुझे वो नेक्स्ट ईयर का सेल का प्लान दे, करेक्ट. तो सेल प्लान से है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल अलोकेट द प्रोडक्शन टू दी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मेरा 4 डेपो है गुजरात में, सूरत है, बड़ौदा है, राइट, अहमदाबाद है, राजकोट है. तो मैं क्या करूंगा कि इसका सेल है ना, एक साल का समझो 10,000 टन है, तो मैं 10,000 टन का प्रोडक्शन है ना, मैं अलोकेट करूंगा अंकलेश्वर प्लांट, राइट. तो अकॉर्डिंगली वो रॉ मटेरियल भी वही मंगाएगा, राइट, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और वो जो नियरेस्ट उसके डेपो है जहाँ पे सेल होता है ना, राइट, वो उसको डिस्पैच करेगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग फ्रॉम होसूर और सम रिमोट प्लांट. हिमाचल प्रदेश में प्लांट है, बद्दी में प्लांट है, करेक्ट. वहां से मैं डिस्पैच नहीं करूंगा. बद्दी से मैं हिमाचल का जितना मेरा डेपो है, जम्मू कश्मीर का कितना डेपो है, वहां पे उसको नॉर्थ इंडिया को मैं कैटर करूँ, मे बी अप टू कानपुर. वी हैव सम ज्योग्राफी, राइट. हमने वो पूरा स्टडी करके रखा था कि कितना ज्योग्राफी को हम लोग कितना प्लांट को अटैच कर सकते हैं. योगेश जी, ये हब एंड स्पूक मॉडल ही हो गया ना कि अगर आपके 500 डिपो नॉर्थ इंडिया में है और अगर आप उनको केटर करोगे साउथ इंडिया के प्लांट से, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इट इज चीपर टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मे बी 2 स्मॉल प्लांट्स and cater to those 100 depots, right, wherein your production time and your time to the depot is reduced. That is the objective. और दूसरा एक रिस्क है कि जितना भी आप ट्रैवल करोगे ना, इतना इन ट्रांजिट डैमेज का भी चांस है. अंडरस्टूड, ठीक है ना. थैंक यू. डैमेज भी हो सकता है ना. पेरिशेबल आइटम्स के अंदर ये नहीं हो सकता ना. पेरिशेबल आइटम्स के नहीं होगा, लेकिन पेंट है तो अपना रोड समझो खराब है, हाईवे खराब है, इतना लंबा ट्रैवल करना, कहीं पे रोड खराब है, तो मे भी आपका कोई डब्बा टूट गया, तो आपको एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए. कश्मीर में केसर बहुत अच्छा उगता है. हाँ, सॉरी क्या हुआ? कश्मीर में केसर बहुत अच्छा उगता है. हाँ. वो पेरिशेबल आइटम है, मतलब डेलिकेसी टाइप हो गया. हाँ. अब उसकी कंस्ट्रेंट ये है कि वो उगेगा सिर्फ
कश्मीर में या ठंडे इलाके में, आप उसको हिमाचल में उगाना चाहेंगे उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, अगर आप उसको साउथ में कहीं उगाएंगे वो उगेगा ही नहीं। बराबर है, हाँ, बराबर। कश्मीर से जब आपको केसर को ट्रांसपोर्ट करना है हाँ, तो इस हाँ, प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? साउथ इंडिया के अंदर नहीं, चेन्नई में भेजना है। नहीं, ये केसर जैसा आइटम है ना वो बहुत कॉस्टली है, राइट। तो उसको आपको वो रेफ्रिजरेटेड वैन में भी हम लोग भेजते हैं। जैसे मेरा डेयरी का प्रोडक्ट है ना रिलायंस में, उसमें मेरे पास रेफ्रिजरेटेड वैन है। मैं समझ गया आपकी बात, इसमें हम लोग बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हाँ। ये कंस्ट्रेंट है कि वो उसी जगह में बन सकता है हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ, तो आप बराबर, मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते, तो एक्सेप्शन हाँ, रहेंगी ना, करेक्ट। एक्सेप्शन मतलब रहेगा ना। इसमें ये प्रोडक्ट वहीं पे बनता है, ये केसर खाली जम्मू कश्मीर में ही उगता है, राइट। और इंडिया में कहीं पे उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो यू हैव नो चॉइस, वहां से आपको वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। और इसीलिए वो महंगा होता है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है ना, इसीलिए उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, करेक्ट। जी Yeah. जी, थैंक यू, समझ गया। हाँ, तो अब ये मोशन हो गया, अभी हो गया एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। मतलब एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग में क्या हो गया कि मैं वर्लपूल का किसको फ्रिज दिया, उसका कुछ कंपोनेंट खराब है, कुछ बराबर चल नहीं रहा है, वो कूलिंग मतलब नहीं दे रहा है, अब कूलिंग स्लो किया फिर भी फास्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वापस मेरा वेयरहाउस में आएगा, मेरा एक रिपेयर का टीम है, वो उसको रिपेयर करेगा, वापस उसको भेजेगा। तो ये सब मेरा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का खर्चा है ना, वो बढ़ते ही जाता है, करेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग भी एक मेरा एक डेडली वेस्ट है, जो मेरा ये पूरा हम डाउन टाइम देखेंगे ना, ये सब है ना मेरा प्रॉफिट खा जाता है, मेरा प्रॉफिट मिनिमाइज करता है या मेरा वेस्टेज बढ़ता है, तो मे भी मैं लॉस भी करता हूँ, मे भी ऐसा भी होएगा कि मेरा कंपनी बंद करना पड़ेगा। ऐसा आपने बहुत सारा देखा है, वी मार्ट कुछ आया था, विशाल मार्ट आया था, तो सप्लाई चेन में हम लोग जबरदस्त फेल हो गए, तो दे कुड नॉट सस्टेन, वो बंद करना पड़ा, करेक्ट। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना, वो हमको डाउन टाइम है, जो डाउन टाइम है लॉकडाउन जैसा है। डाउन टाइम से मेरा फैक्ट्री भी बंद हो सकता है, मेरे को बड़ा लॉस भी हो सकता है, करेक्ट। और अल्टीमेटली मेरे को शायद बैंकरप्ट भी हो जाएगा, करेक्ट, मेरा कंपनी भी बंद करना पड़ेगा इफ आई डू नॉट एड्रेस दीज डिफेक्ट्स। नाउ वी विल सी हाउ टू मिनिमाइज दीज डिफेक्ट्स और ओवरकम दीज डिफेक्ट्स। Okay, Yogesh bhai, Yogesh, I had one question. When you say there is a product में there is a defect, so does it become your responsibility or is it the company का responsibility? How does it become your waste? Isn't Right. it the company Whirlpool का fault है? Don't they reimburse you the cost? Right. So any return na, what we do or what the company does, any return ना they will analyze कि ये कस्टमर से रिटर्न क्यों आया मेरा हाउस। फर्स्ट एक मेरा जो प्रॉब्लम होगा वो मैंने इन ट्रांजिट डैमेज कर दिया, मेरा गाड़ी गया, राइट, फ्रिज लेके गया, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, और या इन ट्रांजिट रोड खराब हुआ, या उसने जो सेफ्टी नॉर्म्स है मेरा, जो वेयरहाउस में हम लोग व्हीकल में हम लोग सेफ्टी नॉर्म्स रखते हैं कि बाजू में वो प्लाईवुड होता है ना, प्लाईवुड रखना चाहिए, राइट, नीचे प्लाईवुड होना चाहिए, उसका समझो ट्रक है उसमें कुछ सब स्टील बिल कुछ बाहर आ गया, खिल्ला बाहर आ गया, और मैं वो उसका प्रोडक्ट को डैमेज कर दिया, तो ये डैमेज है ना कंपनी मेरे से काटती है। जब ये मेरा हिसाब होगा ना मंथली, तो वो बोलेगा भाई ये एक महीने में 10 फ्रिज रिटर्न आया, उसमें 3 में तेरा गलती है, राइट, तो इतना पैसा मैं तेरा काट दूंगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना तो वो कंपनी विल लुक इनटू, वो मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। Thank you, sir. Thank you, Yogesh. सर इनकी स्क्रैप वैल्यू भी वैलिडेट करती है कंपनी, या एक बीच में कॉन्सेप्ट आया था, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद ग्रीन डस्ट, GREENDUST, ग्रीन डस्ट। हाँ, ये कंपनी क्या करती थी, ये जैसे ये डेंटेड आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं या वाइट गुड्स होते हैं, उनको आप लोगों से खरीद लेती थी और उसको रिफर्बिश करके अपने नाम पे ठीक ठाक करके सस्ते दामों में इंटीरियर्स में बेच देती थी। राइट। बहुत ट्रेंड चला था इसका, आई मीन बहुत ट्रेंड चला। हाँ, लेकिन हमने क्या किया, वर्लपूल ने क्या किया है कि उसने है ना कुछ वेंडर फिक्स रखा है, उसका जो सेकंड हैंड स्टॉक है ना वो लेने के लिए कुछ वेंडर रखा है। जब भी मेरे पास है ना कुछ समझो एक मेरा क्वांटिटी फिक्स होता है कि समझो 50 से ज्यादा एक ट्रक का मटेरियल हो गया ना, तो आई विल इनवाइट दोज पीपल जो मेरा
डैमेज में पड़ा है, राइट, वो हम लोग का एसएबी में एक सेपरेट कैटेगरी है डैमेज का। जो फ्रेश स्टॉक है ना उसका कैटेगरी अलग होगा। तो व्हेन आई डाउनलोड स्टॉक ना तो मेरा डैमेज स्टॉक भी सेपरेट आएगा और जो फ्रेश स्टॉक अच्छा स्टॉक सेलेबल स्टॉक है वो भी अलग आएगा। तो जो डैमेज स्टॉक है ना वो मैं मेरा जो वेंडर कंपनी ने फिक्स किया है और रेट भी कंपनी फिक्स करती है, वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो हम लोग क्या फैसिलिटेट करके उसको इनवाइट करते हैं, वो सब स्टॉक देख के जाएगा, अगर खोलने का है तो खोल के बता देंगे उसको, और बाद में वो कंपनी से नेगोशिएट करके वो सब प्रोडक्ट वो लेके जाता है, राइट, और वो अपना सेकंड हैंड सोर्स में वो सेकंड हैंड में बेच देता है। उसमें हम लोग क्लियर कट लिखते हैं कि इसका कोई भी गारंटी या वारंटी कंपनी नहीं देती है, ये डैमेज स्टॉक, लेकिन हम लोग बेचते हैं। तो कंपनी का समझो रेट 100 रुपया है ना, तो मे बी 60-70 रुपये में हम लोग लेके जाते हैं। करेक्ट। हम लोग ऐसा लिक्विडेट करते हैं, मतलब वो कंपनी है ना हमको वेंडर का लिस्ट देती है, वही वेंडर को हम लोग बुलाना, हम लोग उसको बुलाते हैं। हम लोग को कोई राइट नहीं है कि मैं अपना वेंडर बुलाऊं, और प्राइस भी कंपनी नक्की करती है। मैं खाली फैसिलिटेट करता हूँ कि डैमेज स्टॉक है तो उसको डैमेज स्टॉक ही मैंने उसको दे दिया, राइट, और कंपनी का जो बिलिंग सिस्टम है वो हिसाब से मैंने बिलिंग कर, हाँ, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट नोट मिल जाएगा। हाँ उसका क्रेडिट नोट नहीं। हम लोग जो सेल करते हैं ना वो वर्लपूल का नाम का ही इनवॉइस जनरेट होता है और वर्लपूल का नाम का ही पेमेंट आता है। सब कंपनी में ऐसे ही होता है, जो भी 3PL ऑपरेट करते हैं ना सब कंपनी में ऐसे ही होता है कि वो आई एम बिलिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है, आई कैन नॉट बिल ऑन माई कंपनी नेम, गॉट इट। करेक्ट, क्योंकि कंपनी का स्टॉक है, वो स्टॉक प्लांट से मेरे पास भेजती है और मैं यहाँ से डीलर को डिस्पैच करता हूँ और कंपनी के नाम का बिल करता Thanks, Yogesh. Can I go to the Right. next one, Yogesh? Can we move on? हूँ। कैन वी गो अहेड? Yes. Okay. So now we have seen the downtime, we have seen the deadly defects which we need to overcome, and many companies by their operations, by their supply chain, by their intelligent people, they have studied it, and there is a systematic approach, which identifies and eliminates these defects. These we call as lean management or say lean manufacturing. Correct. So what we do, we study all the processes in manufacturing or service industry. We try to identify what are the wastages based on our past experience, right? And what all the data we have. Based on that, we study, we identify those wastages and try to eliminate it, right? And we try to delete all the non-value added activity. The non-value added activity क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कोई कस्टमर का माल रिटर्न आया तो रिवर्स लॉजिस्टिक हो, तो मेरा उस पर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है ना, मेरा एक रिवर्स लॉजिस्टिक है, मेरे को कस्टमर से एक फ्रिज खराब हो गया तो बराबर टाइमली डिलीवरी नहीं हुआ, समझो उसका लड़के का बर्थडे है, वही दिन उसने वो स्टॉक मंगाया था, फ्रिज मंगाया था, मैंने उसको नेक्स्ट डे दिया, वो बोलेगा भाई मेरे को अभी नहीं चाहिए, तुम वापस लेके जाओ, तो मेरा वो फ्रिज वापस आएगा मेरा वेयरहाउस में, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। कोई किसका कुछ फ्रिज खराब हो गया, वापस आया, मैंने उसको रिपेयर किया, वापस उसको भेजा, ये बोला, ये हो गया नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। So we study all this and we try to eliminate all the non-value added activities, right? And we try to avoid all the manufacturing defects. So this is called the lean management or lean manufacturing, right? So next is it was I was in a warehouse, Whirlpool, मई एंड हो गया, मई का हमने फिजिकल स्टॉक ले लिया और अचानक मेरा एक सुपरवाइजर मेरे पास आया कि साहब अपना वी हैव 1,75,000 स्क्वायर फीट ऑफ वेयरहाउस, वेरी ह्यूज वेयरहाउस, सो ह्यूज स्टॉक, एक एंड से दूसरे एंड वेयरहाउस में जाने को 2 या 3 मिनट लगता है चल के, इतना बड़ा वेयरहाउस है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना सब माल लेके लोडिंग करने का अनलोडिंग करने का कितना डिफिकल्ट है। तो वन फाइन डे मेरा एक सुपरवाइजर आया, मुझे बोला कि साहब अभी मैं इनका स्टॉक ले लिया
अभी जून में मेरा बारिश स्टार्ट होगा, तो बारिश में मेरा वॉशिंग मशीन ज्यादा जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग ना, व्हेन वी आर टेकिंग फिजिकल स्टॉक, तो सब वॉशिंग मशीन को मैं एकदम फ्रंट में लेके आता हूँ, राइट। तो मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग वही होगा। तो मेरा लोडिंग बे है और मेरा जो जहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन स्टोर किया है उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और मेरा डिलीवरी फास्ट होगा, करेक्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज काइजन। तो काइजन इज अ स्मॉल चेंजेस। वी इनवाइट एवरीबडी इन द वेयरहाउस ना, कोई भी कुछ भी सजेशन दे सकता है। वी हैव केप्ट अ सजेशन बॉक्स, उसमें कुछ भी इसको कोई बोल नहीं सकता है, तो अपना सजेशन लिख के डाल देगा, या कोई सुपरवाइजर आके मेरे को बोलेगा कि सर ये हम लोग ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। तो स्मॉल चेंजेस ना, वो उससे हम लोग पूरा ये वेयरहाउस चलाते हैं, जिससे हमको बहुत बड़ा फायदा होता है। मेरा डिलीवरी टाइम कम हो गया। मेरा समझो लेबर में अगर 15 रखता हूँ तो मे बी मैं 10 रखूंगा, क्योंकि मेरा सीजन में मेरा अभी ज्यादा से ज्यादा बिक क्या रहा है कि वॉशिंग मशीन बिक रहा है, राइट। जून जुलाई अगस्त में मेरा वॉशिंग मशीन का तेल हाईएस्ट होता है। तो मैं एक ऐसा स्टेप लूंगा ना कि मेरा जो टाइम है, टाइम ऑफ ऑर्डर एंड टाइम ऑफ डिस्पैच एंड टाइम ऑफ रिसीट एट द एंड कस्टमर, उसको मैं कैसे मिनिमाइज करूँ, राइट। तो स्मॉल चेंजेस ना आर कॉल्ड काइजन। तो इफ यू वोंट बिलीव कि 80% ऑफ द सजेशन ना आर कमिंग फ्रॉम द लेबर्स। हम लोग खाली बैठे रहते हैं, वो जो बोलता है अच्छा लगता है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब उन लोग इतना इंटेलिजेंट है ना कि ये छोटा चेंजेस देते हैं, वी एनकरेज देम। हम लोग क्या है, काइजन पर्सन ऑफ द मंथ ऐसा करके एक बोर्ड लगाते हैं, आपने बहुत सा मॉल में भी देखा है, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा करके थोड़ा उनको एनकरेज भी मिलता है और थोड़ा जो डिस्पैचेस है ना इंटरेस्टिंग बनता है। तो ये पहला एक काइजन है जिसमें ये छोटा जो वेस्टेज है वो हम लोग कम कर। योगेश जी, एक एडिशन में डालता हूँ इधर, आपने जो बराबर बताया। इनफैक्ट इवन समझ लो कि आपके पास कोई एम्प्लॉय रहेगा जिसने कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम किया रहेगा या हाईली क्वालिफाइड रहेगा, लेकिन जो सजेशन से काइजन मेथड से आता है, it's quite efficient, it's very effective. You are Right. absolutely right. And even they also feel that they are a part of the organization. Unka inputs, the inputs are being valued. Correct. जैसे implementation होता है, it's like a double impact. और मोटिवेशन उसका बढ़ता है, Motivation बढ़ता है. काम में इंटरेस्ट आता है। No, this is something which I have seen real. I mean, I've seen it in my life. It makes a lot of difference. Yes. Good. Okay. Great. नेक्स्ट क्या है, काइजन हो गया। Just in time, JIT option. अभी जस्ट इन टाइम क्या है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि बिकॉज वी आर कैटरिंग टू मारुति, आई frequently visited Maruti plants. What they do, for paints, they have given me 2,000 square feet of area, right? And they have given me racks, and all the racks now are 20-liter drums. What the company tells me that will not raise any purchase order, right? The racks which have been allotted to you, right, it should not be empty. So what I have done, I have kept one person at Maruti plant. They have allowed one person, my sales person will be staying there, and he will see what are the racks empty. मतलब एक गाड़ी का माल हो गया ना, एक टाटा इसमें समझो 700-800 किलो आता है, करेक्ट। 800 किलो का भी माल हो गया ना, वो तुरंत मेरे को फोन करेगा, साहब ये प्रोडक्ट मेरे को भेजो। तो मेरा 50 किलोमीटर दूर है मेरा प्लांट और मेरा पेंट का प्लांट मारुति से, तो मैं तुरंत वो माल भेज के उसको भेज दूँ। मतलब इसमें जस्ट इन टाइम में व्हाट दे डू नॉट वांट टू कीप इन्वेंटरी, दे डू नॉट वांट टू डू एनी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। रेजिंग अ परचेज ऑर्डर टू मी also is a non-value added activity, right? What they have instructed me कि ये तुमको रैक दिया है ना, ये फुल होना चाहिए बस at any point of time। इसमें तो बड़ा दिक्कत आएगा अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप? हाँ सर, अकाउंटिंग ऐसा करेगा कि जैसे मेरा मैं उसके कांसाई मैं मारुति पे जैसे मेरा समझो 800 किलो कम हो गया,
तो मैं मेरा डेपो, मेरा जो प्लांट है उसको ऑर्डर दूंगा कि ये प्रोडक्ट है 20 लीटर का, इतना डब्बा तू भेज। तो ऑर्डर वो क्या करेगा, वो बिल जनरेट करेगा, और बिल के साथ है ना, राइट, बिल जनरेट करेगा। बिल जनरेट करेगा, लेकिन अगर हाँ, उसमें मारुति डिस्प्यूट का हो एक गया तो, फॉर्मेट है। डिस्प्यूट हो गया तो, हाँ, डिस्प्यूट हो गया तो भाई मैं आपके बोलता हूँ ना, पास मैं अगर बोलता हूँ। 800 किलो प्लांट को 800 किलो पेंट को स्टोर करने की जगह है, हाँ 400 किलो के ऊपर आपके आदमी ने आपको बिल रेज करके दे दिया, मारुति हाँ, तो देख ही नहीं रहा कि उसने 400 का बिल किया है या 600 का बिल किया है। आपने 400 का भेज दिया लेकिन बिल लगा दिया 600 का, तो कैसे चेक होगा? नहीं साहब, वो क्या होगा, देखो मेरा है ना, पहले समझो मेरा फील्ड से बोला कि 20 लीटर का 10 डब्बा अभी भेज, क्योंकि मेरे पास इधर 10 डब्बे का या 20 डब्बे का जगह खाली है। ये आपका आदमी आपको भेजेगा ना प्लांट में, करेक्ट। हाँ, मेरा मेरा जो सेल्स वाला है ना, वो जो मेरा, मारुति में बैठा है। नहीं वो मारुति में बैठा है, और वो हाँ। मेरा जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना बावल में, हाँ, हाँ, पेंट का, हाँ। मेरा मेरा जो बंदा उधर बैठा उसको बोलेगा भाई इतना 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 20 लीटर का इतना इतना डब्बा भेज। मान लिया आपकी बात, एक मिनट होल्ड करो यहीं पे। हाँ, तो वो क्या आपका करेगा। आदमी, एक मिनट होल्ड करो, आपका हाँ आदमी जो मारुति के अंदर बैठा हुआ है, हाँ, उसने आप ही के प्लांट को फोन किया कि करेक्ट मेरे को 40 डब्बा भेज दो। करेक्ट करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मारुति कैसे चेक करेगा कि 40 डब्बा आया या 100 डब्बा आया? मैं आपने बोलता हूँ ना, बिलिंग तो 100 का कर दिया। मैं बोलता हूँ। हाँ, तो क्या होगा कि मैंने उसको ऑर्डर दिया, उसने वहां से समझो 40 डब्बा भेजा, करेक्ट। उसके साथ उसने इनवॉइस रेज किया मारुति के नाम पे, बराबर। वो प्लांट का आपका इनवर्ड का गेट पे आएगा, और मारुति का है ना एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो हमको फिल करके भेजना पड़ता है, राइट। तो फॉर्मेट वो चेक करेगा, वो इनवर्ड चेक करेगा कि कितना बिल मैंने भेजा, 40 डब्बा आया, तो इनवर्ड जो रॉ मटेरियल इनवर्ड वाला होगा ना, जो मारुति प्लांट का बंदा है, प्लांट में माल आया ना, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, बिल के साथ वो चेक करेगा, चालान के साथ चेक करेगा कि 40 डब्बा आया कि नहीं। 40 डब्बा आया तो उसको इनवर्ड लेगा, इनवर्ड जैसे ले लिया, ऐसा मारुति मेरे को पेमेंट रिलीज कर देगा, क्योंकि मेरा बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, बिल का क्वांटिटी और इनवर्ड का क्वांटिटी, जो फिजिकल इनवर्ड आया ना, वो क्वांटिटी मैच करके उसको इनवर्ड ले। तो इसका मतलब उसने कंट्रोल वेंडर को दे दिया लेकिन चेक अपने पास रखा। हाँ हाँ, चेक अपने पास है। इससे उनको एडवांटेज क्या होता है कि एक तो ओवर स्टॉकिंग नहीं होगा, उनको इतना पता है कि मेरा प्लांट में है ना, मेरा 2 दिन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरे को समझो 1 टन का पेंट चाहिए, 1000 किलो मुझे पेंट चाहिए, राइट। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद 1000 किलो का ही पेंट रहेगा उसको, वो ज्यादा ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा ऑर्डर करेगा तो उसका इन्वेंट्री बढ़ेगा, उसका प्लांट में उसको जगह चाहिए उसको स्टेक करने के लिए, राइट। उसका पेमेंट जल्दी ड्यू होगा, पेमेंट जल्दी ड्यू होगा, उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। तो सब कुछ प्रोडक्शन प्लान से लिंक्ड है, समझ गए? जो प्रोडक्शन प्लान होगा उसी से लिंक्ड है। हाँ, वो देखते हैं, लोग देखते हैं, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये एग्जांपल आप समझ गया ना? जी कुछ कुछ समझ गया हूँ, बट मेरे डाउट्स हैं, मैं अलग से बात करूंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट द क्लास टाइम, मैं अलग से बात करूंगा। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल होता है कि जैसे उसका गाड़ी तैयार हुआ ना, तो लास्ट स्टेज होता है आपका टायर लगाने, राइट। तो उसने MRF टायर के साथ सपोज टाइप किया है कि मेरा जितना भी गाड़ी आएगा उसको टायर आप लगाओ। तो MRF टायर वाले का बंदा, उसका पूरा टीम वो प्लांट में बैठता है, मारुति का प्लांट में, और जैसे गाड़ी फुल्ली तैयार हो गया ना, वो 4 टायर फिक्स करेगा, एक उसको स्टेपनी देगा। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकला ना, तो वो 5 टायर का सीधा बिल जनरेट होगा, मारुति वाला करेगा और उसको पेमेंट कर। मतलब इधर आप ट्रिक देखो कि एक गाड़ी पे उसका गाड़ी कितना मैन्युफैक्चर है, उस पर तो उसका पूरा कंट्रोल है, करेक्ट। हाँ, तो 5 टायर का उसको पैसा देने का उसको पूरा कंट्रोल है। तो जैसे गाड़ी मैन्युफैक्चर होके उसका स्टॉक में आया ना, तो उसका PO जनरेट होके, बिल जनरेट होके, वो 5 टायर का उन लोग ने जो पैसा पर टायर समझो 3000 या 4000 रुपया है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करके 15000 उसको वो दे देगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, चाहे BMW हो, मर्सिडीज हो? सर चाहे मैंने टोयोटा? मारुति में तो देखा है, शायद दूसरी सब कंपनी में भी ऐसे ही होगा, मैं दूसरा कोई कंपनी देखा नहीं हूँ, लेकिन हो मारुति में तो सकता ऐसा है, होता है। हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये वर्क करता हो, हाँ, बट right। बाकी ये- इंडस्ट्रीज के अंदर ये मैच नहीं कर पाएगा। हाँ, दूसरा इंडस्ट्री में मैच नहीं करेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री में तो करता ही।
किसी और इंडस्ट्री के अंदर आपके हिसाब से वेरी नियर टू दिस एग्जांपल है कुछ? मतलब ये मैं एक जस्ट इन टाइम का एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी जस्ट इन टाइम कैसे कैसे कर सकती ठीक है ना। है, ऐसा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट शायद ये वेरी होता है, लेकिन आपको इजी एक्सप्लेन करने के लिए मैं जस्ट इन टाइम का ये 2 एग्जांपल दिया कि दिस इज हाउ दे। समझ गए, ओके। मतलब उनको क्या है कि टायर का इन्वेंट्री नहीं रखने का, टायर के लिए इन्वेंट्री रखेगा तो आपको उसको स्टॉक रखना पड़ेगा, उसको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा। कभी कभी ये टायर गया नहीं गया, फूटा हुआ है, गंदा है, राइट, बराबर जमा नहीं, ये सब हेडेक उनका कम हो जाता है। वो पर कार है ना, उसको पार्ट टायर का पैसा दे देगा जब भी आपका कार पूरा मैन्युफैक्चरिंग होके उसका इन्वेंट्री में आएगा या प्लांट से बाहर जाए। ठीक है, ओके। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम होगा, काइजन हो गया, और नेक्स्ट इज 5S। ये हम लोग जो वेस्टेजेस है ना वो एलिमिनेट करते हैं, मतलब प्लांट में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हम कम करते हैं, वेस्टेजेस हम सब कम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कम करते हैं। हाँ, ये सब उसका प्रोसेस है जो हमने डाउन टाइम दिया ना, उसका ये सब प्रोसेस है जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। 5S है ना, 5S में वी कॉल इट टीप, प्लेस फॉर एवरीथिंग and everything in its place, right? Place for everything and everything in its place, that is called PEEP। ये जापानीज फंडा है, जापानीज लोग ने वहां पे इम्प्लीमेंट किया था, जो अभी पूरा दुनिया कर रहा है। इसमें हम लोग, मैं वेयर हाउस का मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि एक वेयर हाउस मैंने लिया, 5S इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं 2 टीम रखूंगा, वो पूरा वेयर हाउस में चक्कर मारेगा, और जो आइटम रिक्वायर्ड है या नॉट रिक्वायर्ड उसके हिसाब से, जो मेरा टीम जाएगा ना उसके हिसाब से आइटम नॉट रिक्वायर्ड है उसको लाल टैग मारेगा कि ये सब आइटम मेरे प्लांट में, मेरा वेयरहाउस में नहीं चाहिए। आप बिलीव नहीं करेगा, मैं पेंट का वेयरहाउस चलाता था, और पेंट का वेयरहाउस में मेरे को पेट्रोल भी मिलता था, डीजल भी मिलता था, और बड़े बड़े टायर मिलते थे। अब सोचो कितना रिस्की है कि पेंट मैं स्टोर करता हूँ, ऐसे भी वो इनफ्लेमेबल है, और उसमें किसने पेट्रोल भी रखा है, डीजल भी रखा। मैंने रीजन ढूंढा ना, तो क्या हो गया कि मेरे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, जो रेगुलर अटैच ट्रांसपोर्टर होते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी पड़ा होता ना वेयर हाउस में ठोक देता। मतलब ये कितना रिस्की है। तो इसके लिए ये 5S इम्प्लीमेंटेशन में यही हमको सब मालूम पड़ा। बहुत सा मेरा वेयर हाउस में है ना, वो चाय बनाते हैं, वो पेट्रोल का प्राइमर रख के उसके अंदर वो घासलेट डाल के सब लोग चाय बनाते हैं। अभी कितना रिस्की है चाय बनाना मेरा वेयर हाउस में, वो भी मेरा पेंट का वेयर हाउस। करेक्ट। तो ये 5S से है ना, ये सब हमको बहुत कुछ सीखने मिला। तो धीरे धीरे हमने ये सब इम्प्लीमेंट करके पब्लिक को भी रियलाइज हुआ कि भाई ये सब हम लोग वेयर हाउस में नहीं रखते। तो सीएरी मतलब शॉर्ट होता है, हाँ, ये सीएरी एक जापानीज वर्ड है। शॉर्ट हम लोग क्या प्लांट में जाके या फिर मेरा जो वेयर हाउस है उसमें जाके चेक करते हैं कि कौन सा हम लोग आइटम को डिस्कार्ड करना चाहिए, वो हम लोग वहां से डिस्कार्ड करते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है मेरा सीटॉन, उसको सिस्टमेटाइज करते, मतलब जो अभी वेयर हाउस में रखना ही है। वेयर हाउस में क्या होता है, मेरा एक स्टॉक होता है, बाद में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है, करेक्ट, बाद में कुछ कंपनी का कुछ गिफ्ट आइटम होता है जो हमको डीलर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, राइट। इसके सिवाय मेरा पीसी होता है जो ऑफिस में लगता है, स्टेशनरी होता है, उसके सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये जो जरूरी है ना आइटम जो हम लोग वेयर हाउस में रखना चाहिए, उसको हम लोग सिस्टमेटाइज करते हैं। इसको उसको प्लेस का नाम देते हैं, उधर साइन बोर्ड लगाते हैं कि ये प्लेस है ना मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का चार्जिंग स्टेशन है, ये प्लेस है ना वहां पे मेरा डस्टबिन पड़ा है, ये प्लेस पे मेरा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट स्टोरेज है, ये मेरा ऑफिस है उसका साइनेज होगा, करेक्ट, ये मेरा गिफ्ट रूम है, ये मेरा रिकॉर्ड रूम है। ऐसा करके एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, एंड उसका बोर्ड या पेंटिंग या साइन बोर्ड या कुछ भी लगा देते। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटाइज करना। पहले सॉर्ट करते हैं, फिर सिस्टमेटाइज करते हैं, और थर्ड है सैनिटाइज करते। मतलब जो भी हमने वेयर हाउस में रखा है ना वो क्लीन और इजी टू यूज होना चाहिए, राइट, सैनिटाइज होना चाहिए। अभी तो ज्यादा उसका बढ़ गया अपना कोविड के टाइम,
लेकिन जनरली भी हम लोग उसका क्लीनिनेस, हाइजीन, बाद में वेयर हाउस कभी हमको क्लीन करना है, डीप क्लीन कभी करना है, उसका एक सिस्टम होता है। करेक्ट, मेरा जितना कोबवेब है वो कभी साफ करना है। कोबवेब इतना, वेयर हाउस का हाइट मेरा 50-55 फुट होता है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड डेली कोबवेब साफ करो, वो महीने में हम लोग एक बार करते हैं। ऐसा करके हम लोग पूरा एक सिस्टम बनाते हैं कि मेरे को पूरा वेयर हाउस को सैनिटाइज कभी करना है, कैसे करना है। ये 3 स्टेज है ना, थोड़ा इजी है जो हम लोग डेपो में इंप्लीमेंट करते हैं, सेल्स का वेयर हाउस है उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करना मतलब इसको, ये स्टैंडर्ड कंटिन्यूस मेंटेन करना, वो लैग आ जाता है, थोड़ा पब्लिक का इंटरेस्ट भी जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये 3rd स्टेज तक किया ना तो वी आर इन अ कंफर्टेबल स्टेज। 4th स्टैंडर्डाइज करने का, थोड़ा मेंटेन करने का, और 5th सिट सुके, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रेन द पीपल, कि पीपल को ही हम लोग ऐसा ट्रेन करते हैं कि ये आपको, ये मेरा वे ऑफ लाइफ है, आपका डेपो ऐसे ही चलेगा, अगर इसे आप नहीं चलाओगे ऐसे तो आपको बाहर जाना है, हम आपको अंदर नहीं रखेंगे। जैसे गुटखा खा के कोई फेंक दिया, हम लोग सिकली, कोई यूपी के मेरे पास बहुत लेबर है, कोई पान खा के थूक दिया, वो हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। मतलब ये सब डिसिप्लिन है ना, हम लोग उसको ट्रेनिंग देते, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देते, उसका रिवीजन होता है, और 5S का फिर ऑडिट होता है। ऑडिट टीम इंडिपेंडेंट आता है, वो चेक करता है कि क्या क्या हमने पैरामीटर में है, क्या क्या पैरामीटर में नहीं। तो ये आपका हो गया 5S। अभी नेक्स्ट इज 6 सिग्मा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये 6 सिग्मा है ना, एक क्वालिटी कंट्रोल मेथोडोलॉजी है, जो मोटोरोला ने 1986 में ये इंट्रोड्यूस किया था। इसमें साइकिल टाइम का इंप्रूवमेंट है, मतलब प्रोडक्शन का साइकिल है, उसको हम लोग मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या वेस्टेजेस है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। काइजन में हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम लोग हो सके इतना कम करते हैं। इसमें पर मिलियन यूनिट है ना 6 सिग्मा में, उन लोग ने आइडेंटिफाई किया कि 3.4 इतना होना चाहिए। मतलब एक 10 लाख पीस अगर मैं समझो मोबाइल बनाता हूँ, तो उसमें 4 पीस है ना डिफेक्टिव होगा, तब तक मेरा 6 सिग्मा मैंने फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया। काइजन में क्या होता है कि मैं हर एक आदमी को इन्वॉल्व करता हूँ, and everybody is welcome, including my laborers. He can give suggestion, I implement, right, and we get the result, right. और 6 सिग्मा में क्या होता है कि कोई एक डिफेक्ट है ना, वो कंपनी को मालूम पड़ता है। जैसे कोई समझो ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल में कुछ डिफेक्ट है, तो कंपनी विल डेप्यूट ए टीम, एक्सपर्टीज का टीम होगा, वो टीम है ना, वो लीड करेगा। उसमें ब्लैक बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट होता है। जो ब्लैक बेल्ट होगा वो मेरा मास्टर हो गया, उसके नीचे हम लोग सब काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये पूरा ये जो डिफेक्ट है, राइट, वो क्या है, उसका क्वांटम क्या है, कंपनी को इसमें कितना नुकसान है, राइट, और वेदर वर्थ है ये डिफेक्ट को रिमूव करने का। अभी मेरा 10 लाख पीस समझो कंपनी ने मोबाइल का दे दिया, उसमें 8 या 10 पीस ही खाली डिफेक्टिव है, तो उसको रिपेयर करने की बदली में सीधा रिप्लेस कर दिया। जैसे आप शायद आईफोन वाला करते हैं, राइट, उसमें रिपेयर का सेंटर ही नहीं होता है। जैसे आपका फोन बिगड़ा, अगर वारंटी में है तो नया दे, करेक्ट। तो ऐसा है ना 6 सिग्मा में ये सब कोई एक पर्टिकुलर डिफेक्ट को ढूंढ के है ना हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना। देखो उसमें डिफाइन होगा, मतलब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बाद में हम लोग मेजर करेंगे कि वेदर दिस प्रॉब्लम इज जेन्युइन, रेयर, और वेदर इट इज वर्थ गोइंग इन डिटेल। बाद में प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे क्या है, और बाद में हम लोग वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो बेस्ट आइडिया है या बेस्ट सजेशन है उसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसा मैंने एक बार प्रोजेक्ट लिया था स्टेशनरी का, व्हाइल आई वाज द ऑल इंडिया कमर्शियल मैनेजर। एशियन पेंट में मैंने एक ये लिया था स्टेशनरी का। तो व्हाट आई आइडेंटिफाइड ना कि मेरा कम से कम साल का 20 से 30 लाख पेजेस जो मैं फालतू में प्रिंट कर रहा हूँ, जिसका कोई वैल्यू नहीं। तो हमने क्या किया, पूरा स्टडी किया। हमने एक 6 सिग्मा का मैंने ट्रेनिंग लिया था, तो उसके बाद कंपनी ने बोला कि नाउ सिंस वी हैव इन्वेस्टेड इन यू, तो तुमने इतना बड़ा ट्रेनिंग लिया तो कुछ कंपनी में करके दिखाओ। बोला चलो, मैंने स्टेशनरी से स्टार्ट किया। तो मैं सब स्टेशनरी स्टडी किया, और बाद में मैंने फाइनल कंक्लूड ये किया
कि कम से कम मैं 20 लाख पेज पर एनम है ना, मैं इसको डिसकंटिन्यू कर सकता हूं, और हमने वो किया है। तो सिक्स सिग्मा में वी डिफाइन अ प्रॉब्लम, वी डिफाइन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट किया तो उसका फायदा आपको कॉस्ट में मिलेगा, आपका खर्चा कम होगा, आपका नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कम होगा। दिस इज सिक्स सिग्मा। हाँ, वेरी क्लियर। Absolutely, you explained it in very simple. I know Six Sigma is a very big subject by itself, but आपने बहुत ही 3-4 मिनट में समझा दिया. We can take an entire session only on Six Sigma, Yogeshwar. Right. Yes, yes. Okay. So now supply chain role in human life. Sir, I have a question. Please Yes, go sir. ahead. बोलो बोलो। Yeah, go Six ahead. Sigma find, Six Sigma find मतलब कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स उनके पास, मतलब कोई ये रहता है, आई मीन ऐप रहता है, आई मीन कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा? नहीं, वो है ना एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है, वो 2-3 दिन का सिस्टमेटिक हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, राइट। और उसमें क्या करते हैं कि आप हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करते हैं, उसका अलग अलग मेथड होता है। हम लोग ये मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, उसमें है ना फिश बॉन्ड टेक्नोलॉजी है, ऐसा ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स है जो उन लोग वो प्रॉब्लम को उसमें फिट करके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने कैसा बोला कि मैंने सिक्स सिग्मा में ये इसका प्रोजेक्ट लिया था स्टेशनरी का, कि मैं पूरे साल में स्टेशनरी का मेरा बजट कितना है, मेरा खर्चा कितना है, और मैं क्या क्या प्रिंट करता हूं। मैं मेरा इनवॉइस है ना, मैं 4 कॉपी इनवॉइस का जनरेट करता हूँ, और मैं एशियन पेंट में 1 लाख एक साल में कम से कम 20 लाख इनवॉइस जनरेट करता हूँ। अगर मैंने एक कॉपी भी डिसकंटिन्यू किया तो 20 लाख पेज मेरा कम हो गया ना, करेक्ट। तो भाई मैंने देखा कि वो क्या था कि वो स्टेशनरी कैसा था, 1+1 था और 1+1 था, तो उसको बाय डिफॉल्ट एक साथ प्रिंट करेगा मैं 4 कॉपी, तो बाद में मैंने सिस्टम में चेंज करा के इसको 1+2 में कर दिया, तो वो 3 कॉपी होगी। मतलब वो एक ट्रांसपोर्टर वाला लेके जाएगा, एक डीलर को देगा, उसका एक्नॉलेजमेंट लेके वापस मेरे पास लेके आया, तो मेरा 2 कॉपी से मेरा काम हो जाता था। तो व्हाई डू आई प्रिंट 4 कॉपी ना, करेक्ट। ऐसा है ना, मतलब इसमें सिक्स सिग्मा में क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और उसमें टीम पे जाके उसको बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट को रिकमेंड करते हैं कि दिस इज व्हाट आई हैव, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, राइट, एंड दिस इज व्हाट इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड वी कैन रिमूव दिस। लाइक दिस आप मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में समझो आपने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, उसमें कुछ रिटर्न आया, राइट, तो उसमें क्या एग्जैक्टली क्या डिफेक्ट था, उसका स्क्रीन खराब था, उसका स्क्रीन चल रही नहीं, कोई ऐप नहीं चल रहा था, क्या था, उसका वॉल्यूम बराबर नहीं था, उसका साउंड बराबर नहीं था, करेक्ट। तो वो सब है ना, वो कंपनी विल टेक ए कॉल कि मेरा कितना ऐसा रिटर्न है और वेदर इट इज वर्थ गोइंग इन डिटेल। अभी आप सिक्स सिग्मा में क्या बोलते हैं हम लोग, 10 लाख पीस पे है ना मेरा 4 मोबाइल खराब निकला तो आई एम एट दी बेस्ट स्टैंडर्ड। लेकिन यही आप एयरलाइंस में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एयरलाइंस में आपने समझो किया और 10 लाख प्लेन चलाया, हमने उड़ान किया और 4 का एक्सीडेंट हो गया और 4 में जितने थे सब मर गए, वो हम लोग एयरलाइंस में नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट में कर सकते। तो सिक्स सिग्मा में आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे करेक्ट, वो प्रॉब्लम को मेजर करके आपको देखना है कि मैं अभी जो इसके बाद जो एक्टिविटी करूंगा मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, उससे मेरा कॉस्ट कितना बढ़ेगा। तो सिक्स सिग्मा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टफिंग के लिए यूज किया जाता है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, What she's asking is Sigma applied only for electronic products, or is it for any kind of it could be for anything, actually it could be for anything. Yes, Six absolutely. Sigma, if you notice, they have been using in McDonald's, Pizza Hut, 30 मिनट में आपको डिलीवरी कैसे देते हैं, ये पूरा स्टडी करके उन लोग देखते हैं कि एक एक सेकंड को मेजर करते हैं।
आप जब भी आपका हेल्थ चेकअप करने जाते हो ना डॉक्टर के पास, मेडिकल चेकअप में, उसमें भी ये 6 सिग्मा हम लोग फॉलो करते हैं। एवरी स्टेज कि आपको ब्लड लेने में कितना टाइम लगेगा, हेल्थ का रिपोर्ट में कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट स्टेज आपका कितना टाइम लगेगा, तो पूरा प्रोसेस है ना वो स्टडी करके आपका जो पिज्जा का डिलीवरी या मैकडोनल्ड का डिलीवरी आधे घंटे में आता है, ये पूरा 6 सिग्मा का एक प्रोसेस है। वो साइंटिफिकली हम लोग स्टडी करते हैं और एक एक सेकंड को मेजर करते हैं। Thanks, Yogesh bhai. Yogesh bhai, I think we have just about 10 minutes. So Yes. I think what we can do is, okay, this is the last part before we have a Q&A session. And Yes. somebody wants to ask questions, please put up in the chat box or you can unmute yourself. Yogesh bhai, you want to add something more? बस अपना सप्लाई चेन का जो रोल है, एक तो इट इज अ फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर। आपने अभी देखा है कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों को एक वैक्सीन दे दिया इतने शॉर्ट टाइम में। ये बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सप्लाई चेन का। करेक्ट, आपको रेफ्रिजरेटेड वैन चाहिए, उसको आपको इतना स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट में उसको सेंटर होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर भी हमने 80 करोड़ पॉपुलेशन को हमने इतने शॉर्ट टर्म में हमने कोवैक्सीन या कोविशील्ड हमने दे दिया। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, अपना रिसेंट एग्जांपल है कि वो हेल्थ केयर के लिए अपना सप्लाई चेन कितना इंपॉर्टेंट है। जॉब क्रिएट करता है वो, बाद में आपका पोल्यूशन मिनिमाइज करता है, उसका भी बहुत सारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बनना है, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज है जो हम लोग प्लांट में करते थे, डेपो में करते हैं। कार्बन एमिशन पे बहुत लोग सब लोग काम करते हैं कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ तो उसे बाहर पोल्यूट किया, जो पेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो पोल्यूशन होगा ही। अर्थ का पोल्यूशन है उसको कैसे निपटाना है, बाद में एयर का पोल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए कार्बन एमिशन है वो कैसे खत्म कर सकते। तो वेरियस मेथड है सप्लाई चेन में जो हम लोग कॉन्स्टेंटली करते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहे। Yogesh, I'm going to add something over here. Yogesh, आपका भिवंडी में प्लांट है, आपका वेयर हाउसेस है, कभी मौका मिलेगा तो स्टूडेंट्स को दिखा दो, जब भी ओपन अप हो जाएगा। एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स क्या होता है आपने तो समझा तो दिया, लेकिन जब हम एक्शन में देखेंगे आपको बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बाय विजिटिंग योर वेयर हाउस। आई वुड से आपका एक ही फोरम होगा जहाँ पे ऐसा विजिट होगा। मैं अभी कोविड है, मैंने आपको बीच में बोला था कि वी कैन टेक देम टू वेयर हाउस, लेकिन अभी मैं कोविड है ना तो मेरा रिलायंस में रिस्ट्रिक्शन है कि बाहर वाला कोई भी, क्योंकि आई हैव अराउंड 200 एम्प्लॉइज है, तो ज्यादा लेबर है, क्योंकि उसको अगर कुछ हो ऑलरेडी है और अपने को हो गया या अपने से उसको हो गया, तो उसलिए अभी हम लोग बाहर का किसी को भी, इवन आई एम नॉट अलाउड टू एंटर। हाँ, बीइंग अ 3PL ओनर आई एम नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि वो अभी रिस्ट्रिक्शन ऐसा रखा है कि जो है काम पे आते हैं उसको ही अंदर आने का, बाकी सबको आने का। तो ये खत्म होते ही तो चला जाएगा, ये कोविड तो चला जाएगा, लेकिन आपका ये जो फोरम है इसको विजिट करने के लिए दिल्ली वालों को स्पेशल डिस्काउंट चाहिए होगा सर। इसमें मैं आपका पूरा जितना भी टीम तैयार होगा ना, कोविड का रिस्ट्रिक्शन जाने के बाद है ना, विल गो टू दी वेयर हाउस, आपको एक एक प्रोसेस में स्टडी कराऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको रात में रहोगे ना तो आपको लगेगा नहीं आप रात में, मतलब ये रात है, इतना लाइव होती है एक्टिविटी, और रात का सीन तो बहुत अच्छा है। देखते हैं, हम स्टूडेंट से पूछते हैं अगर रात को उन लोग are they ready to be there, because I know the action happens in the night especially the Reliance Fresh. Okay, Whirlpool में तो उतना I don't think so उतना मूवमेंट होगा जितना Reliance Fresh में होगा। Yes, नहीं Whirlpool और आपका नेरोलेक का मैं कांसाई का एक डेपो भिवंडी में चलाता हूँ, there you can go anywhere, लेकिन वो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जितना ये लगेगा। योगेश भाई, आप इसमें जो रिलायंस के अंदर जो आप ये सप्लाई चेन करते हैं, इसमें आप खाली वहां से दिखाएंगे जब आपके वेयर हाउस में माल आ जाता है, या आप फार्मर से भी मिलवा सकते हो? नहीं ना, वो तो मैं भी आज तक नहीं देखा हूँ। नहीं, लेकिन मैं बहुत फार्मर्स को रिकमेंड करता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है ना, अभी वो ड्रैगन फ्रूट कच्छ में उगा था, तो मैंने कच्छ में वो ड्रैगन फ्रूट उगाता है और बहुत अच्छा उसका मेरे घर पे बहुत टाइम देके जाता है, मेरा बाजू का ही विंग में रहता है,
तो उसका मैंने रिलायंस वाला इंट्रोडक्शन करा दिया। तभी रिलायंस वाला उसका फार्म में जाके उसका जो एक्सपर्ट टीम है ना वो क्वालिटी चेक करके उसके साथ पूरा ईयर का टाई अप कर लेंगे। अरे वंडरफुल वंडरफुल। ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन जनरली वी डोंट मीट द फार्मर्स, नॉट एडवाइजर्स, So बट anybody they have not been restricted. Sumit, you have been asking some wonderful questions. Huh? I should thank you on behalf of IITC and all the students also. You have asked a lot of questions which probably was there in students' mind, and you did ask the right questions actually. Thank you so much. Sumit. He always does, even in Mr. Britman's class. Oh, really? Okay, Yeah, great. I enjoy the question answer session more. Thank you, Falguni. Thank you very much. Thank you, Sumit. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you Bye. all. Bye. Thank you, Yogesh. Bye. Anybody else? Okay, anybody else wants to ask questions? We just have about, I think, about 5 to 7 minutes. And as Yogesh Bhai said, if when the restrictions of COVID have been removed, he will try and arrange for a visit to his warehouse. But remember, Yes, it's going to be only after 3 o'clock in the evening when the action starts. There's no point of going early. Even लोग दो टीम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 25 का एक टीम होगा ना, 25 को मैं अकोमोडेट करूंगा वहां पे okay, और पूरा प्रोसेस बताऊंगा और नेक्स्ट विजिट वापस 25 का करें। okay. मतलब 2-3 घंटे में हम लोग पूरा प्रोसेस है ना उनको समझा देंगे, हाँ, तो उन लोग को एक लाइव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ. राइट, कैसे इन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक चेकिंग करते हैं, कैसे हम लोग क्वालिटी चेकिंग करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, It will be very nice of you, है, लेकिन बहुत Yogesh. इंटरेस्टिंग है। नहीं, very interesting, Yogesh. Even I would like to see the in action. हमने तो Yes. सर्विस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन प्रिंसिपल्स अप्लाई किया है. This is in the goods industry. It would be very interesting. Okay, Yes. anybody else? Any other kind of questions? Please ask. Whether it's a don't worry about the quality of questions, but just Yeah, there's do ask nothing. questions because he is the man on the field every day. Anybody else? कोई भी सवाल करना है तो प्लीज आस्क मिस्टर योगेश। सर मुझे पूछना है, हाँ, सर वेयर हाउसेस में मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट्स रहते हैं, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट कि हाँ प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट्स कब मतलब निकालना हो या अनलोडिंग या डिलीवर करना हो, जस्ट लाइक आप बार कोड से फाइंड आउट करते हैं या फिर वहाँ पे ऑलरेडी कोई लेबल्स या समथिंग ऐसा कुछ होता है? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें अभी ऑटोमेशन तो बहुत कंपनी में, मोस्टली सब कंपनी में हो गया है, राइट। और ऑटोमेशन अभी इतना सस्ता भी है, पहले बहुत कंपनी को अफोर्ड नहीं होता, अभी बहुत सस्ता हो जाता है। तो बार कोडिंग से जैसे एक मेरा समझो पिक लिस्ट जनरेट हुआ। पिक लिस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर डीलर का आया, कोई कस्टमर का ऑर्डर आया कि हमको एक समझो 365 लीटर का फ्रिज चाहिए, एक ओवन चाहिए, राइट, और एक मेरा ये वॉशिंग मशीन चाहिए। तो तीनों का एक पिक लिस्ट जनरेट हो जाएगा और मैं वो मेरा जो बारकोडिंग है ना सिस्टम, उसमें भी वो SAP से कनेक्टेड रहता है। तो मैं वहां जाके क्या करूंगा, वो जो जहाँ पे मैं गया ना, मुझे मेरा सुपरवाइजर को फिजिकल स्टोरेज सब पता है कि कौन सा आइटम किधर है, करेक्ट। तो वो वहां जाके उसको खाली बारकोडिंग को क्लिक करेगा, उसमें कैप्चर हो जाएगा और उसके साथ जो लेबर होगा उसको बोले जाते हैं उसको उठा के इसको लोडिंग पे लेके जाए, करेक्ट। तो ऐसे मेरा चेकिंग भी हो जाता है, प्लस मेरा क्वांटिटी पे भी कंट्रोल आ जाता है, राइट, और राइट प्रोडक्ट भी वो मेरे कस्टमर को जाए। ओके सर, ठीक है ना? थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Okay, anybody else? Any other questions? Sumit, one for the Sumit, last question from you. Last question is, I want to know what is cooking, rajma or chana from the kitchen where I can hear the. Very interesting. Come home. I said Andheri. All right, I'm from New Delhi. It will be very difficult for me to come right now, but looking forward, sir. So, Yogesh, you have been a wonderful person. I've known you for so many years, but you have been a wonderful human being, down to earth, and you have come up the hard way, but then entrepreneur on your own right, and you are an amazing person. Thank you so much, Yogesh. Thank you. And Thank you all. thank you so much for everybody. For Thank I you hope all. this session was informative. Yogesh,
we'd love to see you at your warehouse now next time. Sure. Anytime. And if you'd like to share some more information the next time you'd want something apart from this, we would love to have you back, Yogesh. Thank you. Thanks a lot. ये क्या किसने क्योंकि कुछ क्वेश्चन लिखा है देखो ना. I'm just checking the chat box. Yes, there's somebody has a good question over here. Is the transportation process monitored by you or the company? ये जो transport आप जो loading करते हो, it's in your responsibility or Reliance का किसका responsibility होता है योगेश भाई? Right. इसमें ना company takes a call. अभी जैसे Reliance है ना, what Reliance has done, they have purchased all the vehicles and they have hired one transportation agency who manages, right? And Whirlpool, what the company has done, company has given me the contract. I have to manage the transport. So I take per piece from the company and dispatch and billing, everything is my responsibility. So it varies from company to company, and the way you deal with them, you give some commercial to them. If they can afford, they give you. Otherwise, they give it to third party also, not to me. Correct. So if I am handling the transportation, company will pay to me based on per kg or per trip or whatever we decide, whatever commercially feasible. Or if they have hired some other agency, they will pay to them directly. Avocado is very high demand. So Sheikh Samir, I did not answer the question. Is fruit avocado in demand? If high demand, one of my friend who farming in Coorg, okay. But that depends on the company, right? They want to buy it or not. Yes. Company will see all every product the company will decide. We are just the channelizing partner. We have to ensure that it reaches to the people or end customer very safely and as soon as possible. Okay. At the lowest time. All right, Yogesh. Thank you so much for your wonderful session. Thank you. Everybody, thank you very much for showing some patience also. Okay. I think the last question, Yogesh, one last question I think you handle. How many total products do you deal with? Yogesh, yes. If you see paint, paint has the highest SKU. We call it SKU. Every product is one SKU, stock keeping unit, we say. So in paint, we have more than 2,000 SKUs we handle. And Reliance Fresh, 700 to 800. Okay. And if you see Whirlpool, around 4 to 500. 4 to 5. 4 to 5. Okay. Sonam, you want to ask a question? Sonam, please go ahead. Okay. Yogesh, I mean, I just want to know कि how many doors in warehouses. I mean, जहाँ पे आप unloading and loading करते हो, तो वो door जो रहते हैं, जो doors रहते हैं, जहाँ पे आप load and unload करते हैं, तो वो कितने सारे doors रहते हैं? जो depend on the warehouses sizes या फिर वहाँ पे कुछ अलग process रहता है? मतलब loading and unloading bay का बात कर रहे हो? नहीं, मैं door की बात कर रही हूँ, जो doors रहते हैं ना? हाँ, doors ना, मतलब loading bay, हम लोग bay बोलते हैं। जी। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, मतलब depending upon the size of warehouse. अभी मेरा समझो 10-12 हजार स्क्वायर फीट का कोई वेयरहाउस है, अभी मैं JSW एक हैंडल करता हूँ, उसका 12,000 फुट का वेयरहाउस है, तो उसमें मेरा जो डोर एक ही है, जो मेरे लिए सफिशिएंट है, मतलब इतना मेरा वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, तो सफिशिएंट है। अभी रिलायंस में मेरा कम से कम 90,000 फुट में 16 लोडिंग अनलोडिंग पे है, पूरा वेयरहाउस ओपन है, उन्होंने कभी ताला लगाया ही नहीं वेयरहाउस, मतलब पूरा साल ऐसे ही खुला ही रहता है, और जितना भी लोडिंग अनलोडिंग पे है ना, सब यूज पे हो जाता है। और मेरा जो वर्लपूल है उसमें कम से कम मेरे पास 20 लोडिंग अनलोडिंग पे, बट वी ऑपरेट ओनली 5 to 6, नॉट मोर, क्योंकि जितना भी लोडिंग अनलोडिंग में खोल के रख दोगे ना, तो रिस्क बढ़ता है ना, बिल फरेज का रिस्क होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें हम लोग बंद रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। So Yogesh, one last question. Yes. What are the mainly कौन सा vegetables and fruits? Is there any specific or is it seasonal?
or you deal in all kind of fruits and vegetables? all kind. अगर आप All रिलायंस kind. फ्रेश में जाओगे, हाँ, रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स में जाओगे ना, हाँ. और समझो आपको कांदा दिखा, कांदा आपने ले लिया और बटाटा नहीं मिला, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं आओगे. So they have to ensure that all types of fruits, vegetables are available. All types, seasonal, non-seasonal, everything. तो अभी कभी भी रिलायंस में जाऊंगा, उसमें आपका हाथ तो रहेगा ही, मतलब आपका कंपनी का छाप रहेगा सब. Yes. Okay, so this way we'll all remember you also. Yogesh, thank you so much. I think we are on, I think it's 11:30. Thank you so much. And everybody, just one announcement. Next Sunday, you have a session, I think from 11 o'clock. I've sent you the link. Most of you must have got the links on Success Principles by Dhrittaman. Would love to see you, everybody over there. And 3rd October, you have your regular supply chain management classes. Thank you very much once again, Yogesh, for joining us. Thank you all. Thank you all. Thank you Thank so you, sir. much. Thank you very much all. Okay, thank you. It was very interesting. And, yeah, and everybody have a great day. Thanks, Yogesh. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, everybody. Thank you very much.